Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. Today our topic is types of sentences. In previous video we did the same topic, types of sentences, but that type is according to formation. According to formation. Types of sentences, that was according to formation, that we did in previous video. What are that? Assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence and optative sentence. That we did all that according to formation we did in a previous video. But now in this video we will do types of sentences but according to structure. Structure uska kaisa hai? That one is how many types? There are 3 types. First one is simple. Second one compound and third one complex. First of all we will discuss simple sentence here. ब्रीफ में मैं एक बार आपको डिस्कस कर देती हूँ. सिंपल सेंटेंस क्या है? व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? एक सिंपल स्टेटमेंट ओनली और जिसके अंदर हमारी ओनली वन फाइनाइट वर्ब होती है. कंपाउंड सेंटेंस जिसके अंदर 2 मेन क्लॉज होती हैं. मेन क्लॉज क्या हैं? जो अपने आप के ऊपर स्टैंड हो सकती हैं. इट मीन्स वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती और दोनों क्लॉजेज की जो है अपनी फाइनाइट वर्ब होगी. नेक्स्ट वन इज थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. दैट वन मेन क्लॉज एंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी बट दोनों में ही अपनी फाइनाइट वर्ब होगी. अब हम डिटेल में करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई सिंपल, हाउ टू आइडेंटिफाई कंपाउंड एंड ए कॉम्प्लेक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस, first of all definition we will discuss because with the help of definition we are easily able to learn uses and identification of anything. It consists, what consists? Simple sentence consists only one main clause. इसके अंदर क्या होती है? सिर्फ एक ही मेन क्लॉज होती है. इसके साथ कोई भी दूसरी मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होती है. एंड वन फाइनाइट वर्ब, और एक फाइनाइट वर्ब होती है. एग्जाम्पल के थ्रू देखें. ही हैज़ ए बिग हाउस. ही हैज़ ए बिग हाउस. सब्जेक्ट है आपका, वर्ब है और आपका ऑब्जेक्ट है. इट मीन्स सेंटेंस के अंदर सेकंड वर्ब नहीं है, ओनली सिंगल वर्ब मिलेगी आपको. ये बहुत ही इजी वे है इसको आइडेंटिफाई करने का. सिंगल वर्ब आपको मिलेगी किसके अंदर है? सिंपल सेंटेंस के अंदर. चंडीगढ़ इज ए प्लेंट सिटी. हेयर इज ऑल्सो ओनली वन वर्ब वी हैव, सिंगल वर्ब वी हैव. सो both are simple sentence. That's it's very easy thing to identify a simple sentence. Little bit confusion here it will create, but that I will clear to you. Second one is compound sentence. What is compound sentence? Definition we will take first of all. It consists, I have told you, 2 main clause. What will be the structure? Main clause प्लस मेन क्लॉज. इट मीन्स कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दोनों मेन क्लॉज होगी. अगर आपने इससे पहले अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो देखेंगे क्लॉजेज एंड देयर फंक्शन, फ्रेज एंड क्लॉजेज एंड देयर फंक्शन. देयर ऑल दीज थिंग्स टोटली क्लियर. मेन क्लॉज और कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस में जो मेन क्लॉज है, इट मीन्स यहाँ पे जो कंजंक्शंस यूज होंगे उनको भी डिटेल में डिस्कस किया गया है. वैसे तो मैं अभी भी आपको बताऊंगी बट वो आपको इजीली क्लियर कर पाएगा. कंपाउंड सेंटेंस क्या है? इट कंसिस्ट 2 मेन क्लॉजेस, मेन क्लॉज प्लस मेन क्लॉज एंड बोथ क्लॉजेस हैव फाइनाइट वर्ब. बोथ क्लॉजेस, इट मीन्स यहाँ भी फाइनाइट वर्ब होगी एंड हेयर ऑल्सो फाइनाइट वर्ब. इट मीन्स 1 + 1. हमारे पास टोटल कितनी वर्ब्स हो जाएंगी? यहाँ पे 2 वर्ब्स हो जाएंगी कंपाउंड सेंटेंस के अंदर. बोथ क्लॉज हैव फाइनाइट. क्लियर दिस थिंग? टेक एग्जाम्पल. वी वेंट टू द मार्केट but the shops were closed. One thing is we went to the market. It is connector. And the shops were closed. Both, one clause is this and one clause is this.
This one is with the help of connector, and both clauses have their verbs, and both sentences, you can say, or both clauses has finite verb. So this sentence is a compound sentence. Next one is he has a house and it is very big. He has a house. First one clause, and both clauses are main clause, main clause, main clause, and a main clause. This one is the connector. So this one, both examples are belong to compound. Yes, after explanation of compound sentence, now we will take some words. With the help of that, we are able to identify which one is compound sentence. Which words? Some words are coordinate conjunction words. Others are correlative conjunctions. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शंस हैं वो हमारे ये कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं. अगर हमारे सेंटेंस के अंदर इफ वी गेट दीज कनेक्टर्स in between for the connecting of two sentences, then our sentence is compound sentence. With the help of this formula, you are easily able to learn this. Fanboys, Fanboys. I write here F for fan, F for, A for and or as well as, N for nor, B for but, O for or and otherwise, Y for yet, S for still and so. और one more word we have else. इसका यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो ये से साउंड है, इसलिए मैंने इनके साथ इनको कंबाइन किया है. आप इनके साथ इस कैटेगरी में इसको आप लर्न करेंगे. देन यू आर इजीली एबल टू लर्न. आप फैन बॉयज़ लिख सकते हैं, सामने ये लिखिए. ऐसे क्रैम करने से लर्न नहीं होते कि आप क्रैम करने लगो कि फॉर एंड नोर बट नो. easily with the help of this formula you are easily able to learn all these things. आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं. फैन बॉयज़, अब से आपको क्या है, आपको यहाँ नहीं देखना है. F for, A for and or as well as, N for nor, B for but, O for or otherwise, Y for yet, S for still so and else. Yes, these are coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions इनको हम कहेंगे. And some are in pair, in two pairs. These are correlative conjunctions. ये सेंटेंस को correlate करते हैं. हार्डली के साथ हमें क्या मिलेगा? हार्डली when, if then, though yet, not only but also, both and, either or, neither nor, whether or. If you are able to learn all these connectors, we will use in compound sentence. अगर हम कंपाउंड सेंटेंस को इजीली लर्न कर लेते हैं तो जो एक्सेप्ट जो और कनेक्टर हमारे लिए बचे हैं, then that we will use in complex sentence. Easily we are able to do that. Take two examples here. You may either stay in the hostel or with your relatives. I use here either or. If you have learnt all this, then you are easily able to learn this one correlative conjunction I learn in compound sentence. So it will be compound sentence. Next one, I had my lunch but I am hungry again. बट आपके माइंड में क्लिक करेगा कि बॉयज़ में बी फर्स्ट में क्या है हमारा, बी जो है बट वो फैन बॉयज़ की कैटेगरी में आता है. और इफ़ बट इज़ हेयर देन आवर सेंटेंस विल बी कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस एंड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो इट इज़ ए
compound sentence. With the help of all these, you are easily able to identify which one is compound sentence. Third one is complex sentence. Complex sentence. After the identification of compound sentence, now we will discuss complex sentence. It contains one main clause. कंपाउंड सेंटेंस में हमने क्या किया था, बोथ क्लोजेज आर मेन क्लोज, दोनों जो क्लोज थी हमारी मेन क्लोज थी, बट यहाँ पे वन क्लोज इज मेन क्लोज एंड वन क्लोज इज सबॉर्डिनेट क्लोज. सबॉर्डिनेट क्लोज मीन्स हमने क्लॉजेज में किया था ये टॉपिक कि एक क्लोज सबॉर्डिनेट क्लोज होती है, तो क्या है, इट मीन्स सबॉर्डिनेट क्लोज जो है वो मेन वर्ब के मेन जो क्लॉज है उसके ऊपर डिपेंड होगी. इट मीन्स उसका जो अकेला अपना जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं हो सकता. ये नहीं है कि वो बिल्कुल टोटली मीनिंगलेस होगी, नो, उसका भी अपना मीनिंग होगा, बट जो बिल्कुल एक क्लैरिटी है मीनिंग की, दैट वी आर एबल टू आइडेंटिफाई ओनली विद द हेल्प ऑफ ए मेन क्लॉज. बट बोथ क्लोजेज हैव फाइनाइट वर्ब. दोनों क्लोजेज के पास फाइनाइट वर्ब होंगी. क्या है, वन इज मेन क्लोज, सेकेंड वन इज सबॉर्डिनेट क्लोज एंड थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक इज फाइनाइट वर्ब. यस, देन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्लॉजेज हेयर में बी. अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है हमारा वो हमारा मेन क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज के साथ है. अब सबॉर्डिनेट अगर क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज अगर हमारे अंदर है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितने टाइप्स की क्लॉजेज हमें मिल सकती हैं. जो हमने सबॉर्डिनेट क्लॉज के पार्ट्स किए थे, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज. अगर ये क्लॉजेज हमें मिलती हैं, देन आवर सेंटेंस विल बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि यही हमारे सबॉर्डिनेट के पार्ट्स हैं. और सबॉर्डिनेट क्लोज जहाँ है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. एक इजी वे है, अगर नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज है, देन इट विल बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. बिकॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट क्लोज एंड सबॉर्डिनेट क्लोज ओनली कंसिस्ट इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आई होप इट इज क्लियर. There are some words I write here. In compound sentence also we wrote so many words, correlative conjunctions and correlative some words. Here also when, while, who, which, where, whereas, where means mostly WH words will come here as a connector. ये हम हैं किस लिए, देखो when है, while है, किसको शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है. और प्लेस कहाँ शो करता है, जब हमारा एडवर्बियल क्लोज होती है. एडवर्बियल क्लोज किसको बताती है, या तो वो टाइम को बताएगी, या वो वेयर एवर, ये किसको बता रहा है, ये प्लेस को बता रहा है, या तो वो प्लेस को बताएगा, या वो ये सॉरी मैंने यहाँ पे देखो व्हेन एंड व्हाइल किसको बता रहा है, टाइम को शो कर रहा है. ये टाइम को शो कर रहा है, ये प्लेस को शो कर रहा है. मोस्टली वर्ड जो हैं वो प्लेस को या टाइम को शो कर रहे हैं. रीज़न बता रहा है. अब देन जो है वो कंपैरिजन बता रहा है, बिकॉज रीज़न बता रहा है, सिंस है. ये सब चीज़ें कहाँ की थी हमने, ये सब चीज़ें हमने पार्ट्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉज में की थी. आपको जो क्लॉजेज वाली वीडियो है वो मैंने फुल डिस्क्रिप्शन के साथ बनाई है. नियर बाई मीन्स हाफ एन आवर से भी थोड़ी बड़ी है, बट उसको बहुत कई बार आपको देखना है और बहुत अच्छे तरीके से उसको देखना है, क्योंकि हर एक चीज़ उससे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लॉजेज से लिंक हैं. सो दैट, वेदर, अनलेस, बिकॉज, दैट, सच एज, इफ, सिंस, बिफोर, आफ्टर, so that, then, though and although. These are the words that we will get in complex sentence. जो वो words हमने डिस्कस किए थे, अगर वो हैं हमारे, तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है. अगर हमारे ये वर्ड्स एज ए कनेक्टर हैं, हमारे पास दो क्लोजेज को ज्वाइन कर रहे हैं, इट मीन्स अ सेंटेंस इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इन एग्जाम्पल यू सी, एज आई एम गेटिंग लेट फॉर माई क्लास, आई विल सी यू इन द इवनिंग. एज आप सर्च आउट कीजिए, यहाँ कहीं मिल रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है. ओके, आई गेट इट, ये यहाँ पे है. और एज यही करेक्टर सेम हमने यूज़ किया है यहाँ से, देन इट विल बी कॉम्प्लेक्स
sentence. After you write them, you must return my pen. After टाइम को इंडिकेट कर रहा है, आफ्टर को फाइंड आउट कीजिए. इज इट हेयर? देन इट इज बोथ आर ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो इट्स वेरी इजी वे टू find out which one is complex sentence and which one is a compound sentence. In exams, sometime you get identify sentences, which one is compound sentence and which one is complex sentence. With the help of that words, you are easily able to identify which one is compound sentence and which one is a complex sentence. आप easily identify कर सकते हैं clauses को identify करके कि अगर both clause जो है हमारी main clause हैं तो हमारा sentence compound sentence होगा, और एक clause main clause है और एक हमारी subordinate clause है तो हमारा जो sentence है वो complex sentence होगा. हम easily identify कर सकते हैं. कुछ words भी मैंने आपको डिस्कस किए हैं, आप उनको नोट डाउन करके लर्न कर सकते हैं. वन मोर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्ट्रक्चरल बेस के ऊपर कि आप सिंपल सेंटेंस को ऊपर दो सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं सिंपल सेंटेंस आपको, एंड दे विल आस्क टू यू चेंज टू कंपाउंड सेंटेंस एंड चेंज टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. देन हाउ टू चेंज दैट सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंस को हमें चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस के अंदर. अगर सिंपल सेंटेंस को हमें कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, इट मीन्स कंपाउंड सेंटेंस माइंड में आते ही हमारे दो चीज़ें माइंड में आनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस किए थे, किसकी हेल्प से? फैन बॉयज़ की हेल्प से. वो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लिक होने चाहिए कि हमें कौन से कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं जो हमें कंपाउंड सेंटेंस. देखो इनकी पहचान भी हम यही कंजंक्शंस देख के करते हैं, और जब हम इनको बनाते हैं सिंपल सेंटेंस को, जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो भी हम इन्हीं कंजंक्शंस का यूज़ करेंगे. एक सेकंड थिंग जो हमारे माइंड में आएगी वो जो हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस थे जो हमने एग्जाम्पल्स लिए थे बहुत सारे, आइदर और, नाइदर नॉर, लाइक दैट. तो हमें अब सेंटेंस कैसा बनाना है? कंपाउंड सेंटेंस बनाना है. कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो ये तो है नहीं कि हम जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ले लेंगे. सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस लेंगे तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी. हमें जो कंजंक्शंस लेने हैं वो इनमें से लेना है. अब आप इसको सेंटेंस को रीड कीजिए और इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कीजिए. आई कॉल्ड हिम, दैट फुल स्टॉप, हिज फोन वॉज स्विच्ड ऑफ. अब आप गैस कीजिए कि आप फैन बॉयज़ में से यूज़ करना चाहते हैं या आप कोरिलेटिव कंजंक्शंस में से यूज़ करना चाहते हैं. हाउ टू चेंज इट? आई कॉल्ड हिम बट हिज फोन वॉज स्विच्ड ऑफ. हमने बट का यूज़ किया, हमने फैन बॉयज़ में बिफोर क्या किया था? बट. सो हमने ये क्या बनाया? बट वी चेंज इट एज ए कंपाउंड सेंटेंस. देन इन नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस वी विल चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. When we will change simple sentence into complex sentence, then it is very easy. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस है? जहाँ पे हमारी सब एक मेन क्लॉज होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है. जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें कौन कौन सी क्लॉजेज होंगी? हमारी नाउन क्लॉज होगी या फिर वहाँ पे एडवर्ब क्लॉज होगी या हमारी एडजेक्टिव क्लॉज होगी. और ये तीनों कौन से कनेक्टर्स लेती हैं? ये जो हैं हम सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शंस हैं, वी यूज़ ऑल सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. देन इन एग्जाम्पल, आई वॉज बिजी, आई कुडंट मीट देम. चेंज इट एज आई वॉज बिजी, कोमा आई कुडंट मीट देम. एज कहाँ था हमारा? एज हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का कनेक्टर है जिससे हमने इस सेंटेंस को कनेक्ट किया. देन दिस सेंटेंस विल इज आवर कॉम्प्लेक्स
sentence. So like this we are easily able to convert a simple sentence into a complex sentence and a simple sentence into a compound sentence and a complex sentence both. So I hope you understood all the things. You have to learn all the words that I gave you here, and after watching this video, like, share and subscribe my channel.